गुलबर्गा शहर में मौजूद मदरसा अरबिया मोइनिया का 15वां सालाना जलसा और 1500 साला मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तकमीली नाजिरा कुरान का कामयाब इनाक़ाद अमल में लाया गया है, जिसमें मदरसे के तलबा तालिबात ने पार्टिसिपेट कर कुरान की तिलावत, नमाज की अहमियत और दीगर उन्वान पर बेहतरीन किरदार अदा किए हैं। इस मदरसे के बानी मौलाना यासीन अशरफी साहब और दीगर असातिज़ा की मेहनत से पिछले 15 सालों से इस मदरसे के ज़रिए कई तलबा तालिबात दीनी तालीम और अच्छे अखलाक सीखते आ रहे हैं। इस जलसे की सदारत तक़द्दुस माब डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब ने फरमाई है और इस जलसे की सरपरस्ती तक़द्दुस माब हज़रत सैयद हाशिम पीर साहब क़िबला ने की है और साथ ही इस जलसे की ज़ेर हिमायत हज़रत मौलाना जुनैद क़ादरी साहब क़िबला ने की है। और इसके अलावा सैयद आक़िब अल हुसैनी साहब, वसीम सलीम और दीगर कई उलमाए किराम, मशाइखीन और तलबा तालिबात के पेरेंट्स और दीगर कई सोशल वर्कर्स यहाँ मौजूद थे। सभी ने मदरसे के ज़रिए दी जा रही तालीम और बच्चों के परफॉर्मेंस की तारीफ़ की और साथ ही दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम दिलाने वाले माँ बाप को भी मुबारकबाद पेश की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्या कहूँ कैसे बनाया रब ने चेहरा आपका, जो भी देखा वो हुआ फौरन ही शैदा आपका, जो भी देखा वो हुआ फौरन ही शैदा
اگر کسی چیز کی آج ضرورت ہے تو وہ دینی تعلیم کی ضرورت ہے. ہمارا اس بات میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم سے محروم رکھیں. دنیاوی تعلیم ضرور دلائیں اور اس کی ضرورت بھی ہے، مگر اب اس سے کہیں زیادہ ضرورت دینی تعلیم کی ہے. ہمارے پاس پچھلے 25-30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بھائی بہن، چاچا پھوپھا خالو، یہ سب کے سب انگریزی تعلیم سے واقف ہیں. انگریزی درسگاہوں میں وہ تعلیم حاصل کیے ہیں، انگریزی ماحول میں وہ جی رہے ہیں. اور بچوں کو اگر کوئی زبان نہیں آتی تو اردو زبان نہیں آتی کا مطلب بولنے تو آتا ہے، گھر کی زبان ہے، مادری زبان ہے، بولنے میں تو اردو بولتے ہیں، مگر لکھنے پڑھنے میں اردو سے آج کی ہماری نسل نابلد ہے. قرآن کی تعلیم سے ہماری آج کی نسل محروم ہے اور اس کا ہر ایک کو اقرار ہے، ہر ایک اس کی تصدیق کرے گا. نانا کو بھی انگریزی آتی، نانی کو بھی انگریزی آتی، ماں کو بھی انگریزی. بچے کو اگر انڈا کھلانا ہو تو ماں چھوٹے بچے سے کہتی ہے یہ کھاؤ گے؟ ایک انڈا نہیں بولتے، اس کو ایک بولتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی زبان ان پر غلبہ کر چکی ہے. کیا بتاؤں یار، اس وظیفے کا میرا نام پڑھنا میری کتنی بڑی بھول تھی. اگر میں آپ کی بات سن کر بسم اللہ پڑھ لیتا تو نقصان سے بچ جاتا. اچھا جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ سے خیال رکھنا. انشاءاللہ آگے کسی اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نہیں بھولوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کتاب کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے کتاب معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ مکمل ہے. لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا، اگلے کلمے میں نقطے لگتے رہے. لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا. اللہ کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توحید پہلے سے مکمل ہے. اگلا جملہ بتاتا رہا، نبوت کا سلسلہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ، آدم صفی اللہ بے نقطہ، اسماعیل صفی اللہ بے نقطہ، عیسیٰ روح اللہ بے نقطہ، موسیٰ کلیم اللہ بے نقطہ، عیسیٰ روح اللہ بے نقطہ. جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ بے نقطہ اسی طرح محمد رسول اللہ بے نقطہ. توحید مکمل تھی، نبوت مکمل ہو گئی، اب رسالت مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، ختم نبوت کا تاج پہنا دیا. اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. رب کو دیکھا ہے تیرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں. کیونکہ یہ مدرسہ علم کا باغ ہوتا ہے اور علم کے بعد سے جو آپ سب پڑھتے ہیں مدرسے کے بچے، وہ آپ سب علم میں ماہرت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. بڑے ہو کر جب یہ علم اور نکھرتا ہے اور نکھرتا ہے تو آپ لوگوں کو جب وہ علم بانٹتے ہیں تو اس سے ان کی ایمان کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے. آپ اسٹوڈنٹس کوئی عام اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، آپ سب ایک علم کا چراغ سمجھتا ہوں جو فیوچر اپنے ہندوستان کا مستقبل، اپنے گھروں کا مستقبل، آپ کے معاشرے کا، اپنے لوگوں کا مستقبل کو سدھارنے والا علم ہے جو مدرسوں میں بڑھتا ہے. اور ہمارے خاتون بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں میرے، میں سے بھی یہی بولنا چاہوں گا کہ آپ سبھی کی تربیت ہے جو آپ کے بچے جو ہے علم میں ماہرت حاصل کرتے ہیں.
सबसे पहले यासीन अशरफी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह से जमजम कॉलोनी और आसपास के इलाकों के बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए जिस तरह से लगातार पिछले कई सालों से यासीन साहब मेहनत करते आ रहे हैं, तो बहुत ही काबिल तारीफ़ की बात है। क्योंकि जिस तरह से आजकल के जो माहौल में बच्चे मोबाइल में अपना वक्त ज़्यादा गुजार रहे हैं, इसमें काफ़ी बच्चों के जो परसेंटेज हैं स्कूल में काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। ये तमाम पेरेंट्स की शिकायत है। इसके साथ साथ दुनियावी तालीम के अलावा दीनी तालीम बच्चों को देना ये बहुत ही ज़रूरी है आज के माहौल में। जो भी माँ बाप अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिला करा रहे हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास करके यासीन अशरफी साहब के मदरसे में काफ़ी अच्छी तालीम यहाँ पर बच्चों को दी जा रही है। दुनियावी तालीम से बच्चे आपके दुनिया में कामयाब होंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग जिस तरह से अपने बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप अपने बच्चों को दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब कर रहे हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद देते हुए आज जिस तरह से तमाम बच्चे यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे यहाँ पर, वो भी काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से कुरान भी आज कई बच्चों के यहाँ पर मुकम्मल हुई है। आली जनाब सैयद डॉक्टर मुस्तफ़ा हुसैनी साहब के हाथों उनको सर्टिफिकेट दी गई, ये बहुत ही फ़ख्र की बात है आपके बच्चों के लिए। बड़ी खुशी ये होती है कि अल्लाह ताला ने हमें दीन और दुनिया दोनों तालीम करने के लिए दुनिया में भेजा है। जिस तरीके से यासीन मौलवी साहब उनके अहलिया ने आखिर का गिरा दमदम कॉलेज में आवाम के लिए बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। इस खिदमत के साथ बच्चों के वालिद साहब और वालदा भी बच्चों को सुबह दोपहर शाम बहुत अच्छे अंदाज में मदरसे को भेज रहे हैं। पहले उनके वालिद साहब का और वालदा का मैं दिल की गौरव से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात यह है कि यासीन मौलवी साहब के पास छोटे बच्चे 4 साल 5 साल के बच्चे नूरानी खैरियत थे जो कुरान शरीफ शुरू करे, और तकरीबन बच्चे भी कुरान शरीफ मुकम्मल करें। और इनके मदरसे से भी मैं कहता हूँ कि तकरीबन बच्चे भी हिफ्ज़ करें। ये जितना भी कुरान शरीफ शुरू करें और मुकम्मल करें, हिफ्ज़ करें, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसका अदर बच्चों के वालिद साहब और वालदा और यासीन मौलवी साहब की अहलिया उनकी फैमिली को अल्लाह ताला अदा करे। मदरसा अरबिया मोइनिया के बच्चों को सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं, जिसमें से कई हाफिज़ कुरान मुकम्मल किए हैं। मैं इन तमाम लोगों को, जो बच्चों को, उनके वालिद वालदा सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस चीज़ को हासिल किया। और सबसे बड़ी मुबारकबाद इस मदरसे के तमाम ज़िम्मेदारान और उस्तादान उन सभी को, क्योंकि उनकी मेहनत के बगैर ये हासिल नहीं होता। और मेरे अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मदरसे को बुलंदियाँ अता फरमाएं और तमाम जितने बच्चे यहाँ से पढ़कर निकल रहे हैं उन्हें सही राह में सही रास्ते पे ले जाएं और उनके ज़रिए हज़ारों लोग इल्म हासिल करें और इस्लाम का परचम लहराएं। शुक्रिया। मैं यासीन अशरफी साहब को मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी काफ़ी मेहनत रही यहाँ पर बच्चों को इल्म देने के लिए। और बच्चे जो इल्म हासिल करते हैं, मैं समझता हूँ वो अपनी रूह की ग़िज़ा को पूरी कर रहे हैं। और इनका इल्म न सिर्फ गुलबर्गे तक बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में इनका इल्म फैले, मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूँ। और मैं वो बच्चों के वालिद वालदा को सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ, जो जिन्हें सर्टिफिकेट दी गई कि कुरान मुकम्मल किए हैं। मैं सबको और उनके वालिद वालदा को खुसूसी मुबारकबादी इसलिए पेश करता हूँ क्योंकि उनकी मेहनत रही कि वो अल्लाह की राह पे और कुरान मुकम्मल करने में उनकी मेहनत रही। और मैं इसी के साथ फिर से एक बार यासीन अशरफी साहब को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ, ये उनके मेहनत के लिए और ये पूरा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, बच्चों को इल्म बांटने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज 30 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर सुल्तान पैलेस फंक्शन हॉल में मदरसा अरबिया मोइनिया का 15वां सालाना जलसा 1500 साला जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकमीली नाज़रा कुरान का कामयाबी इनेकाद अमल में लाया। इस जलसे के सदारत तक़द्दुस मआब सैयद मुस्तफ़ा हुसैनी साहब क़िबला ने फरमाई और इस जलसे की सरपरस्ती तक़द्दुस मआब हज़रत सैयद हाशम पीर साहब क़िबला सज्जाद नशीं बारगाह हज़रत तीग़ बरहना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई।
عزیزان گرامی، اس جلسے کے زیر حمایت تقدس معاب حضرت مولانا جنید قادری صاحب قبلہ جانشین و سجادہ نشین بارگاہ حیات اللہ قادری عملی محلہ نے فرمائی۔ اس جلسے کا انعقاد سلطان پیلیس فنکشن ہال میں ہوا، جس میں طلباء و طالبات نے قرأت، نعت، حمد اور اسلامک ڈرامے اور تقریریں پیش کی۔ میں گلبرگہ ہیڈ لائنز کے اس چینل سے تمام مہمانان، سجادگان اور جتنے حضرات اس جلسے میں تشریف لائے، مہمان علماء کرام، ان تمام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام جو معاونین ہمارے مدرسے عربیہ معینیہ کے سالانہ جلسے میں تعاون فرمائے ہیں، ہم ان کا بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔